Hello, welcome back once again in Basic Electronics practical session. So in the last practical session, we have completed the experiment number 4, that is to test the half-wave rectifier on breadboard. But unfortunately, we are not able to do it on the breadboard. We have done it using the virtual lab site. So today also we are going to continue the same thing in your practical number 5 and 6. So it is combined practical number 5 and 6. So both the part you have to build and test half-wave rectifier on breadboard with filter part 1 and 2. So in this particular experiment number 5, experiment number 6 combined together, you have to do the same thing. You have to do the half-wave rectification, half-wave rectification without filter and half-wave rectification with filter. So in your experiment number 5 and 6, the part 1 is half-wave rectifier without filter. So just the same thing which we have seen in our last practical, that is half-wave rectifier without any filter. So it's your part 1 of this experiment, and part 2 of our experiment is half-wave rectifier by using shunt capacitor filter. So part 2 is with the help of capacitor and part 1 is without filter. So both the thing we are going to see in this particular experiment. So in this experiment, we have to use a shunt capacitor filter. So what we have seen with the help of using shunt capacitor, so the role of capacitor is charging and discharging. So your half-wave rectifier output is converted in the waveform like this. Means what? Capacitor is going to be start charging and it is going to charge till where? Till the peak voltage. As soon as the capacitor charge till peak voltage, this diode will become reverse bias due to the polarity, due to the potential level of same at both the side, anode and cathode. So this diode will become reverse bias, and as soon as the diode will become reverse bias, this capacitor is going to start discharging through this load resistance RL. So the waveform is going to be observe you like this, charging and discharging of capacitor, charging and discharging of capacitor. So in this way, somehow you are getting closer to your AC signal into DC. So this particular rectifier circuit with the help of shunt capacitor, you are converting the more amount of AC into some extent to the DC thing. Although this shunt capacitor alone, it is not going to convert your pure DC, it is somehow going to remove your AC amount also in the output. ओके, बात समझ में आ रही। तो हम लोग को आज के एक्सपेरिमेंट में क्या करना है, आज के एक्सपेरिमेंट में हम लोग को वही हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट का देखना है, लेकिन खाली क्या यूज़ करना है आगे, एक्स्ट्रा शंट कैपेसिटर फिल्टर यूज़ करना है। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर से हमारे वेवफॉर्म में इम्प्रूवमेंट आता है। जो हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट होता है उसमें बहुत ज़्यादा एसी कंपोनेंट होता है, रिपल होता है। तो उस एसी कंपोनेंट को कई हद तक का ये विद द हेल्प ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर हम लोग रिमूव करते हैं। तो ये आपको इन दी एंड इस तरीके की वेवफॉर्म आपको दिखाई देगी, जनरेट होते हुए दिखाएगी। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कैपेसिटर ये आपके वेवफॉर्म के आउटपुट में रिफ्लेक्ट करके दिखाएगा। तो इस तरीके से आप क्या होता है, आपका वेवफॉर्म एग्जैक्ट डीसी तो नहीं, लेकिन बहुत कोशिश हद तक का वो डीसी के करीब होने की कोशिश करता है। ऑल्दो उसका सबसे पुअर फिल्टरिंग होता है। अकेला शंट कैपेसिटर का फिल्टरिंग इतना अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू ऑल द टाइप्स ऑफ फिल्टर विच वी हैव स्टडीड इन अवर थियरी लेक्चर। तो ये चीज़ हम लोग को अभी आज के प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व करना है। ये जो वेवफॉर्म आपको विथ फिल्टर है, क्या वो ऑब्जर्व होती है कि नहीं होती है जब आप इस रेक्टिफायर सर्किट के आगे एक पैरेलल में शंट कैपेसिटर का यूज़ करोगे। तो ये सेम चीज़ को हम लोग को ऑब्जर्व करना है। हम लोग ये चीज़ को भी वर्चुअल लैब साइट के थ्रू कंप्लीट करेंगे, और इसका जो ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल लास्ट टाइम के जैसा ही सेम है। इसने क्या किया हुआ है, वो वही चीज़ पूछा है, रेक्टिफाइड आउटपुट का पीक वोल्टेज कितना है वो लिखना है। वीडीसी तो कितना मेजर हुआ सीआरओ पे, डीसी आउटपुट वोल्टेज वो लिखना है। वीडीसी विदाउट फिल्टर, तो विदाउट फिल्टर कितना डीसी आउटपुट वोल्टेज था जो मेजर हुआ यूजिंग डिजिटल मल्टीमीटर। तो ये तो चीज़ हम लोग कर ही नहीं रहे ना, हम लोग प्रैक्टिकल अभी लैब में कर रहे हैं। तो जहाँ पे हम लोग मल्टीमीटर वगैरह यूज़ करते हैं, सीआरओ को देखते हैं ना, जो भी वर्चुअली हम लोग को आउटपुट मिलेगा, पीक वोल्टेज मिलेगा, उसके थ्रू हम लोग कैलकुलेट करेंगे डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो वॉट एवर द पीक वोल्टेज वी आर गेटिंग इन दी आउटपुट, only that peak voltage it is going to be divided by pi and that will give us the DC output voltage। तो हम लोग वर्चुअली तो सिर्फ इतना ही कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर में लगा के ब्रेडबोर्ड पे कर रहे होते। तो ये सारी चीज़ मेजर करते थे, ब्रेडबोर्ड पे करते तो मल्टीमीटर लगा के मेजर करते, सीआरओ पे भी देखते कितना आता उसका आउटपुट वोल्टेज, वो भी मेजर करते। तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअली ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। खाली ये ऑब्जर्व करेंगे क्या हम लोग को कैपेसिटर को यूज़ करके फिल्टरिंग ऑब्जर्व होती कि नहीं होती है। जैसा वेवफॉर्म हम लोग को यहाँ पे शो हुआ है,
आर वी गेटिंग सच टाइप ऑफ वेवफॉर्म और नॉट। हाफ वेव रेक्टिफायर का ये वेवफॉर्म है जो विदाउट फिल्टर है, और विद फिल्टर जो शंट कैपेसिटर के साथ में जो आउटपुट मिलेगा वो आपको इस तरीके का वेवफॉर्म मिलेगा, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग का। तो ये सेम चीज़ को अभी हम लोग को अपने को एक्सपेरिमेंट वर्चुअली वी लैब साइट पे करना है। बाकी ये सब ऑब्जर्वेशन आप कब करते पूरा कंप्लीट, जब आप प्रैक्टिकल लैब में होते तो आप सब चीज़ देख के करते थे। CRO पे क्या आउटपुट मिला, मल्टीमीटर पे आउटपुट वोल्टेज कितना मिला, दोनों चीज़ को मेजर करके हम लोग वेरीफाई करते क्या जो CRO पे मिल रहा है क्या वो मल्टीमीटर में भी मेजर करके सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इस तरीके से वेरीफाई करते हैं। तो एक आउटपुट जो है वो विदाउट फिल्टर को यूज़ करके और एक आउटपुट जो है वो विथ फिल्टर को यूज़ करके। तो विदाउट फिल्टर दोनों का मेजर करना था और विथ फिल्टर यूज़ करके दोनों का मेजर करना था। तो ये चीज़ हम लोग की एक्सपेरिमेंट थी। लास्ट में हम लोग को DC आउटपुट कितना कैलकुलेट हुआ वो लिखना था, जो फिल्टर वाला आउटपुट है। तो फिल्टर वाले आउटपुट के हिसाब से जो DC आउटपुट वोल्टेज आया वो कितना मिला। तो फिल्टरिंग होके मतलब जाहिर सी बात है DC वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा ही मिलेगा। विदाउट फिल्टर यूज़ करके आपको DC वोल्टेज उतना नहीं मिलेगा, लेकिन जब फिल्टरिंग कर लोगे तो फिल्टरिंग करके जाहिर सी बात है आपको DC वोल्टेज कैलकुलेशन में ज़्यादा ही मिलेगा। तो फिल्टर करके यही तो होता है, हम लोग क्या करते हैं AC कंपोनेंट को रिमूव करते हैं और DC कंपोनेंट को लेके आते हैं। तो DC वोल्टेज उतना ज़्यादा मिलेगा आपको जब फिल्टर सर्किट को आप यूज़ करोगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इसको वर्चुअल लैब साइट से करने की कोशिश करते हैं। तो दिस इज़ योर वर्चुअल लैब साइट, वी लैब साइट, जहाँ पे हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाते हैं। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में जाने के बाद लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पे ऑब्जर्व करते हैं। तो ये लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जो जो हम लोग से रिलेटेड हम लोग उसको कर रहे हैं। तो हम लोग ने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन कर चुके हैं। अब हाफ वेव रेक्टिफिकेशन को विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटिव रेक्टिफिकेशन करना है। तो इस पे जाएंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में वही सब पूरा थियरी नॉलेज देता है पहले, किस तरीके से फिल्टरिंग का रोल होता है, AC को DC में कन्वर्ट करता है, फिल्टरिंग करता है। फिर यहाँ पे शंट कैपेसिटर फिल्टर को लेके आया है। तो शंट कैपेसिटर फिल्टर को लेके आपको इस तरीके का वेवफॉर्म ऑब्जर्व होगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर के हिसाब से बताया हुआ है। ना अभी हम लोग को एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करना है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का लेके चलना है। ये शंट कैपेसिटर जो यूज़ करोगे वो कैपेसिटर इस तरीके से दिखेगा, दिस टाइप ऑफ कैपेसिटर जो आपको दिख रहा है। इसको ये कैपेसिटर आपको प्रैक्टिकल लैब में नज़र आता दिखता। ये कैपेसिटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, कोई सिरामिक होता है और कोई ये आपका दूसरा इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होता है। तो अलग अलग मटेरियल का फॉर्म किया हुआ कैपेसिटर बनता है। तो ये सारी चीज़ हम लोग वहाँ पे ऑब्जर्व करते थे। अभी हम लोग को क्या करना है, इसका सिमुलेशन पार्ट में जाना है। कैपेसिटिव रेक्टिफिकेशन फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। तो वी आर ऑन द सर्किट ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर विथ शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो ये आपकी सर्किट है, ये उसके नीचे के पैरामीटर्स है, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, क्या चीज़ है, कितने के अमाउंट्स है, वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है, मेंशन कर रहा है। तो इस डायग्राम में आपको क्या नज़र आ रहा है, सिंगल डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में, लोड रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे उसके पैरेलल में क्या यूज़ किया है, कैपेसिटर। तो यहाँ पे रजिस्टर के बाद में कैपेसिटर यूज़ किया है, चाहे तो आपको इधर पे फ्रंट में यूज़ करोगे चलेगा। हम लोग ने अपनी सर्किट डायग्राम में कैपेसिटर को पहले देखे। तो कैपेसिटर हम लोग अपनी नॉर्मल सर्किट डायग्राम जब माउंट करते हैं तो कैपेसिटर को फ्रंट में फेस करते हैं, फिर बाद में लोड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। लेकिन इन दिस सर्किट इट इज़ गिवन ओवर हियर आफ्टर द रजिस्टर द शंट कैपेसिटर इज यूज। क्या करना है अभी हम लोग को, सबसे पहले तो ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद पहले हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट को ऑब्जर्व करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो पहले तो हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट को देखेंगे, पहले इतने पार्ट को देखेंगे। फर्स्ट वी विल सी दिस मच पार्ट। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट आपने देख चुके थे, क्या ये आपको ऑसिलोस्कोप के बराबर दिखाई दे रहा है, दिस इज योर ऑसिलोस्कोप। तो ये आपका ऑसिलोस्कोप है। तो ये ऑसिलोस्कोप पे हम लोग कौन सा आउटपुट देख रहे हैं, दिस इज द आउटपुट ऑफ विच वे फॉर्म विच सर्किट, हाफ वेव रेक्टिफायर। तो ये हाफ वेव रेक्टिफायर का ये आउटपुट आपको इधर पे नज़र आ रहा है ना। इसका वोल्टेज कितना है वो चीज़ अगर आपको देखना है तो आप इधर पे आके देख सकते हो। यहाँ पे चैनल 1 का वोल्टेज कितना दिया हुआ है, आपका पीक वोल्टेज ऑफ चैनल 1। तो पीक वोल्टेज ऑफ चैनल 1 कितना है, 1 वोल्ट। इसका मतलब ये कितने वोल्ट का है, 1 वोल्ट का है। तो अगर आपको बढ़ाना है, चेंज करना है, तो फ्रॉम हियर यू कैन इंक्रीज। तो मैं यहाँ से देखो इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैंने 2 वोल्ट पे लेके आ गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये फॉर्म में, ये अब 2 वोल्ट का हो गया। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, जो फिल्टर सर्किट को हम लोग इनपुट देने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पे अभी उसको 1 वोल्ट से कितना कर दिया, 2 वोल्ट का दिया। तो चैनल 1 का जो आउटपुट है ये आपका रेक्टिफायर का आउटपुट है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइडर आप चाहो तो उसका पीक वोल्टेज चेंज कर सकते हो। तो दिस पीक वोल्टेज आई हैव चेंज टू 2 वोल्ट।
अदरवाइज यू वांट इट इन द 1 वोल्ट ओनली, तो आप इसको 1 वोल्ट पे करके रखो, एडजस्ट करके रखो, चलेगा। तो मैंने दोबारा से इसको कितने पे लेके आ गया, 1 वोल्ट पे लेके आ गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप अगर उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह चेंज करना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकते हो। ये 1000 हर्ट्ज यानी 1 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, तो आप अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी को भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो। तो जैसा फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज़ करोगे वैसा रेक्टिफायर के आउटपुट में चेंजेस नज़र आएगा। तो जैसा आप फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हो तो रेक्टिफायर के आउटपुट में चेंजेस आ रहा है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आप बेटर अंडरस्टैंडिंग करना चाहते हो, बेटर नॉलेज के लिए, तो आपको जो वेवफॉर्म प्रॉपरली दिख रहा है आप उसको उस पर ही रखो, वो वैल्यू पे रखो। तो यहाँ से मैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ, तो देखो ये आपकी वेवफॉर्म में चेंजेस आ रहा है। तो अगर मैं कितने का फ्रीक्वेंसी पे एडजस्ट कर रहा हूँ, मैंने यहाँ से 1 किलो हर्ट्स के बदले में अगर 2 किलो हर्ट्स का करता हूँ, तो 2 किलो हर्ट्स के हिसाब से मुझे ये वेवफॉर्म इधर पे नज़र आएगा। जैसे यहाँ पे आपको वैल्यू वो हिसाब से एडजस्ट करना है। सो ये 2 किलोवाट्स का आपको प्रॉपरली, तो पहले एक साइकिल का दिख रहा था वेवफॉर्म, अब ये 2 साइकिल का वेवफॉर्म आपको नजर आएगा उतने के अमाउंट से। सो दिस इज द रेक्टिफायर आउटपुट फॉर 2 किलोवाट्स, 2 किलोवाट्स फ्रीक्वेंसी का है। तो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर नॉलेज, अगर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करके रखें 1 किलोवाट्स पे, तो दैट विल ऑल्सो अ गुड थिंग ओनली, तो वो हमारे लिए बेटर होगा। तो हम लोग ने वही 1 किलोहर्ट्ज़ के हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर दिए चैनल 1 का। अभी तक हम लोग ने फिल्टर का आउटपुट नहीं देखे, हम लोग विदाउट फिल्टर ही देख रहे हैं, रेक्टिफायर का आउटपुट देख रहे हैं। नाउ कमिंग टू रेक्टिफायर ऑल्सो, अब हम लोग रेक्टिफायर का रन सिमुलेशन करेंगे। यहाँ पे देखो रन सिमुलेशन दिया हुआ है, तो दिस कैपेसिटर इज गोइंग टू बी कम इन द रोल प्ले। तो ये कैपेसिटर प्ले करेगा अपना रोल जब मैं यहाँ पे रन सिमुलेशन करूँगा। तो देखो मैंने रन सिमुलेशन किया, नाउ यू आर एबल टू सी द ऑब्जर्व द वेवफॉर्म। तो ये जो डॉटेड में आपको दिख रहा है, दिस इज योर हाफ वेव रेक्टिफायर आउटपुट। और ये जो डार्क में अभी आपको वेवफॉर्म जो दिख रहा है, ये कैपेसिटर फिल्टर का है। तो विद द हेल्प ऑफ दिस कैपेसिटर फिल्टर व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, कैपेसिटर ने पीक वोल्टेज तक चार्ज किया, कैपेसिटर पीक वोल्टेज तक चार्ज किया, तो क्या फिर इसके बाद डायोड यहीं पे क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। हालांकि डायोड को तो पूरे साइकिल में कंडक्ट करना था, फॉरवर्ड बायस होना था, लेकिन क्या होता है जब रेक्टिफायर में आप शंट कैपेसिटर का यूज़ करते हो, तो शंट कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है ये चार्ज हो जाएगा अपने आप को पीक वोल्टेज तक। जैसे ही पीक वोल्टेज तक चार्ज करेगा तो इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, तो डायोड क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो डायोड हाफ साइकिल पे ही, हाफ साइकिल के मिडल पे ही क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। तो उसके रिवर्स बायस होने की वजह से फिर ये कैपेसिटर क्या करेगा, अपने आप को डिस्चार्ज करेगा इस रजिस्टर के पास में। तो ये जो आपको वेवफॉर्म में नज़र आ रहा है, ये डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर है। फिर डिस्चार्ज होता रहेगा, फिर उसके सामने फिर वापस से नेक्स्ट साइकिल का पीक वोल्टेज आ जाएगा कैपेसिटर के पास, तो फिर दोबारा अपने आप को चार्ज करेगा और ये डिस्चार्ज करेगा। तो ये चीज़ हम लोग ने थियोरी में अंडरस्टैंड कर चुके थे, अब ये वर्चुअली हम लोग मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये चीज़ हम लोग ने जो प्रैक्टिकल में, जो थियोरी में अंडरस्टैंड किए, उसको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें विद द हेल्प ऑफ दिस वर्चुअल लैब साइट। तो अगर मैं डुअल चैनल करता हूँ तो दोनों भी वेवफॉर्म मुझे नज़र आएगा। तो ये डुअल चैनल पे क्लिक किया तो ये बिल्कुल ऑसिलोस्कोप है, जो आप लोग अपने लैब में ऑसिलोस्कोप देखते हो, तो ये पूरा ऑसिलोस्कोप का ये पूरा वर्चुअल इमेज है। चैनल 1 दिख रहा है, चैनल 2 दिख रहा है। चैनल 1 पे आपका ये इनपुट रेक्टिफायर का है, अगर सिर्फ मैं चैनल 1 करूँगा तो चैनल 1 पे ये सिर्फ रेक्टिफायर का आउटपुट नज़र आएगा। अगर सिर्फ चैनल 2 करूँगा तो चैनल 2 पे आपको ये फिल्टर का सिर्फ आउटपुट नज़र आएगा। और अगर डुअल करता हूँ तो डुअल में आपको दोनों भी वेवफॉर्म नज़र आएगा। तो हम लोग ऑसिलोस्कोप पे यही चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, चैनल 1 चैनल 2 एक साथ लेके आते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं हाँ बराबर रेक्टिफायर का ये वेवफॉर्म इसी तरीके से आउटपुट ले रहा है ये फिल्टर, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। So in this way you are able to see properly the role of this shunt capacitor filter in your rectifier circuit। और इस तरीके से हम लोग ये चीज़ को अंडरस्टैंड कर पाते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, क्या कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, क्या चीज़ आप इधर पे मेजर करोगे। तो सबसे पहले बोला है मेजर द पीक वोल्टेज। तो व्हाट इज पीक वोल्टेज ऑफ द आउटपुट, तो पीक वोल्टेज ऑफ द आउटपुट कितना है हम लोग ने यहाँ पे जो सेट किए चैनल 1 पे। तो यहाँ पर चैनल 1 जो वैल्यू हम लोग ने सेट किए वही वैल्यू हम लोग को इधर पे भी मिल रही है। चैनल 1 की वैल्यू यहाँ पे जो दिखा रहा है आपको, तो चैनल 1 देख लो चाहे चैनल 2 देख लो, तो चैनल 1 आपका रेक्टिफायर का है, चैनल 2 आपका फिल्टर का है। तो फिल्टर इज ऑल्सो शोइंग यू हाउ मेनी वोल्ट, कितना वोल्ट दिखा रहा है, 1 वोल्ट। तो पीक वोल्टेज जो है आपका आउटपुट का, रेक्टिफायर का बोलो चाहे आप फिल्टर का बोलो, दोनों का पीक वोल्टेज आपको कितने पे मिल रहा है, 1 वोल्ट पे मिल रहा है। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, वी आर एम एस। वी आर एम एस कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है, वी एम डिवाइड बाय रूट 2। तो आप वी एम डिवाइड बाय रूट 2, यू कैन यूज ईयर कैलसी ऑल्सो,
यहाँ पे आपके पास कैल्सी दी हुई है, तो आप यहाँ पे कैल्सी का यूज़ भी करके कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब इस पर आप क्लिक करोगे तो कैल्सी नज़र आएगा। ऑफ करता हूँ मैं यहाँ पे कैल्सी क्यों नहीं यूज़ हो रहा है। यहाँ पे लोगों ने कैल्सी का सेक्शन भी दिया था, अभी इधर पे कैल्सी क्लिक नहीं हो रहा है। आई डोंट नो, यहाँ पे हम लोगों को ऐसा कैल्सी का भी ऑप्शन दिया था, कैल्सी भी यूज़ कर सकते थे इधर पे। तो वी एम डिवाइड बाय रूट टू, तो आप वी एम डिवाइड बाय रूट टू करोगे तो वी आर एम एस मिलेगा। वी डी सी, तो डी सी आउटपुट वोल्टेज क्या है, वी एम बाय पाई। तो जो आपके मैनुअल में था डीसी वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए जो बोला है आपको, डीसी आउटपुट वी एम डिवाइड बाय पाई, तो वी एम आपका 1 वोल्ट है, डिवाइड बाय पाई कर दो, पाई मतलब 3.14, सो 1 डिवाइड बाय 3.14 करोगे तो आपको डीसी वोल्टेज मिल जाएगा। तो वी एम इज़ योर पीक वोल्टेज, तो पीक वोल्टेज आपका 1 वोल्ट है, डिवाइड बाय पाई करो, तो जो आपको मिलेगा आंसर दैट विल बी डीसी आउटपुट वोल्टेज। तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो सारी जगह पे यही आउटपुट रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ एक ही चीज़ यूज़ की है, आपने वर्चुअली ऑब्जर्व की है। तो वर्चुअली में आपको रेक्टिफायर का आउटपुट भी पीक वोल्टेज 1 वोल्ट है और फिल्टर का आउटपुट भी आपको 1 वोल्ट है। सो उस तरीके से आप करोगे तो आपको इधर पे जो आंसर मिलेगा वही चीज़ आपको इधर पे लिखना है, कैलकुलेट करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंड हो रहा होगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल अभी हम लोग को जो दोनों भी चैनल पे जो आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, वही चीज़ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो वी एम 1 वोल्ट, वी एम डिवाइड बाय रूट टू वी आर एम एस, वी एम डिवाइड बाय पाई, वी डी सी वोल्टेज, और इसके आगे जो कैलकुलेट करने बोला है आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। आपके मैनुअल में तो कुछ और पूछा है, मैनुअल में आपको पूछा है कि वी डी सी आउटपुट वोल्टेज मेजर करो विदाउट सी आर ओ, विदाउट फिल्टर सी आर ओ, विदाउट फिल्टर मल्टीमीटर, विद फिल्टर सी आर ओ, विद फिल्टर मल्टीमीटर। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली रहते हैं, लैब में रहते हैं, तो डेफिनेटली दोनों का आउटपुट वोल्टेज मेजर करते हैं और कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आपको ज़रूर ऑब्जर्व होता। आपको इतना ज़्यादा खास डिफरेंस तो ऑब्जर्व नहीं होता, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिफरेंस ज़रूर होता, क्योंकि आपने फिल्टरिंग की है तो जाहिर सी बात है डीसी आउटपुट वोल्टेज तो आपको ज़्यादा ही मिलना चाहिए एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेक्टिफायर आउटपुट। आपका फिल्टर किया हुआ आउटपुट उससे थोड़ा डीसी में ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन कुछ खास डिफरेंस नहीं रहेगा, थोड़ा ही बराबर रहेगा, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर विथ यूजिंग ओनली शंट कैपेसिटर, तो इतना ज़्यादा अच्छा फिल्टरिंग नहीं रहेगा ये, फिर भी थोड़ा बहुत का इंप्रूवमेंट दिखेगा ना के बराबर। लेकिन फिलहाल अभी आप लोग क्या लिखोगे, तो आप लोग अपना डीसी आउटपुट वोल्टेज सिंपली कैलकुलेट किया कर सकते हो। वी एम इज 1 वोल्ट डिवाइड बाई पाई, 1 डिवाइड बाई पाई, वट एवर द आंसर यू आर गेटिंग यू मस्ट बी एबल टू राइट इन दिस कैलकुलेशन और रिजल्ट। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 5 and 6 which is a combined part half wave rectifier using शंट कैपेसिटर फिल्टर। तो एक था विदाउट फिल्टर, एक था विथ फिल्टर। तो ये चीज़ हम लोग ने क्या किए, अपने वर्चुअल लैब साइट के थ्रू हम लोग ने कंप्लीट किए। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 and 8 जो है वो है आपका फुल वेव रेक्टिफायर ब्रेड बोर्ड पे करना है। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फुल वेव रेक्टिफायर जो दिया हुआ है आपको, ये सेंटर टैप रेक्टिफायर का दिया हुआ है। तो ये फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट आपको कैलकुलेट करना था सेंटर टैप वाले का। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, ओके। आई होप आप लोग को ये चीज़ अभी इतनी समझ में आई होगी। किसी को कुछ डाउट है क्या किसी इसमें, कैसा जो वेवफॉर्म में आपको जो दिखा रहा था उस वेवफॉर्म में आपको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट और ये इसका आउटपुट, इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना, इसमें कुछ क्लियर है? Yes. ओके, तो मेरे ख्याल से दैट्स ऑल फॉर टुडेस एक्सपेरिमेंट। तो आज के एक्सपेरिमेंट में मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, एक्सपेरिमेंट नंबर 5 and 6 पे। तो इन आवर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वी आर गोइंग टू सी फुल वेव रेक्टिफायर वाला, फुल वेव रेक्टिफायर वाला देखेंगे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में। आज के एक्सपेरिमेंट में ये करना इतना काफ़ी था। इन वन प्रैक्टिकल वन एक्सपेरिमेंट इज सफिशिएंट। तब तक मैं अटेंडेंस आपका ले लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने अटेंडेंस मार्क कर लिया है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रैक्टिकल सेशन। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग।